Hi friends, how are you? I am here again for part 2 of the topic tenses, which is going on as you all know. And now, in the last video, I introduced tenses before you with a view to imparting some kind of concrete knowledge for the viewers who are eager to learn tenses. Because I find many students tell me that they do not know tenses properly, and that is why they can't solve the grammatical problems systematically in their life. So I tell you, the tenses are the part and parcel of our life of English grammar, and unless we learn these topics, the tenses, the our knowledge will not be regarded as complete knowledge of English grammar. So कहने का मतलब यह है कि टेंस जो है, टेंस का सही सही ज्ञान होना ही एक आधार है जिस आधार पर हम अपने अंग्रेजी का निर्माण करते हैं. वी बिल्ड अवर इंग्लिश ऑन द फाउंडेशन ऑफ टेंसेज. So if our foundation is weak, then how can we dream of building a strong building on that weak foundation? So in order to strengthening your foundation, start understanding these topics properly so that you may feel no problems whatsoever. Now, कहने का मतलब यह है कि जो पिछले जो मेरा जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि टेंस जो है, मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है. तो इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर मुझे बहुत ही बड़ा एक अच्छा सुविचार याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूं. लेट मी explain a fantastic aphoristic saying, which is past is history, future is a mystery, today is a gift, that is why we call it present. So मतलब I mean to say, what is ended cannot be mended. जो बीत गया, past is history, future is a mystery, we can't know, we can't tell for sure what will happen tomorrow, and our future is absolutely unpredictable. And if we can't predict our future, then let's not indulge in worrying our future. And in the same way, now what has happened, what has been done cannot be undone. जो हो गया बीती ताई विसार दे, आगे की तो सुध ले. लेट बाइकॉन्स बी बाइकॉन्स. द पास्ट इज ए हिस्ट्री, जो बीत गया वो इतिहास बन गया. टुडे इज ए गिफ्ट, जो वर्तमान है वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि भगवान ने हमको वर्तमान का उपहार दिया है. लेट्स लिव द एंजॉय द मोमेंट. हमको वर्तमान में रहना है और वर्तमान में आनंद लेना है. भूतकाल के बारे में सोचकर और भविष्य काल के बारे में सोचकर अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है. लेट्स नॉट इंडल्ज इन ruining आवर लाइफ thinking what happened yesterday and what will happen tomorrow. So that is why present has 2 meanings in this aphoristic saying. One meaning is Vartman and one meaning is gift. So today is a gift of God. In that sense, the present has been used in the sense of gift. तो आज जो है वो भगवान का दिया हुआ हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा उपहार है. तो हमको इस उपहार को सहेज कर रखना है और इसको लेट्स चेरिश आवर गिफ्ट गिवन बाय गॉड ऑल माइटी. तो कहने का मतलब यह है कि पास्ट, फ्यूचर और पर जो है प्रेजेंट 3 हो गए. उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इनमें ये जो 12 टेंस हुए, उन 12 टेंस के भी
4 प्रकार के वाक्य बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. 4 kinds of sentences will be built on the basis of our tenses. Our 4 kind of sentences will be built. So in the last video I made the sentences of positive sentences of all the 12 tenses. Now in this video I will make negative sentences, and you will have to concentrate keenly what happens here. And if you get through this, if you succeed in this endeavor of learning this topic, then no one can stop you from prospering in your life. So now present indefinite tense. Now I am making negative sentences. So what happens? Present indefinite tense. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सारे जो है 12, इसके जो है इनके सारे नेगेटिव वाक्य में बना रहा हूं, और ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो नेगेटिव के फॉर्मूले हैं. तो आपको ये जो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं. तो पहला है रवि वाला वाक्य चल रहा है, जो पिछले वाला वाक्य था रवि, सब्जेक्ट रवि, ओके. और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो रवि जो है क्रिकेट नहीं खेलता है, तो रवि के साथ आ जाएगा डज नॉट प्ले क्रिकेट. अब एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि इसमें डज नॉट प्ले क्रिकेट जो मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही होगा. उसके बाद में किसी भी वाक्य में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा वर्ब के साथ में, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा. हमको एक बात याद रखनी है. तो रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट. अब यहाँ पर डू और डज दोनों आया है, तो ये भी सोचने की बात है कहाँ डू आता है कहाँ डज आता है. तो आई वी यू अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो आएगा डू, आई वी यू, या कोई प्लूरल में है तो डू आएगा, और ही सी इट या कोई नाम है तो वो डज उसके साथ में प्रयोग होगा. तो रवि एक नाम है, तो रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट. नाउ पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट करता हो गया रवि और डिड, ये डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये सारी है हेल्पिंग वर्ब. डिड नॉट, नॉट आ गया. मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? मैन वर्ब हो गई प्ले. तो ये तो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब. डू डज है, डिड है, ये इज आर एम है, विल सेल है, हेल्पिंग वर्ब हो गई. और जो मैन वर्ब हो गई, जो मुख्य क्रिया है वो मैन वर्ब हो गई. और उस क्रिया के भी 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो अपन को काम में लेनी है. तो डिड नॉट प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट नहीं खेला. ये पास्ट में हो गया कि भाई रवि क्रिकेट नहीं खेला. डिड नॉट प्ले क्रिकेट. डिड के साथ में एक बात ध्यान रखें आप हमेशा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में मैन वर्ब प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. और लेकिन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमेशा वापस फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. हमेशा ध्यान रखें डू, डज या डिड के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आती है. और डिड नॉट प्ले क्रिकेट, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट फिर हो गया रवि और विल, रवि विल का प्रयोग आ गया. विल सेल का भी एक कोई है फर्क है, वो आपको बताएंगे आगे कि कहाँ विल आता है कहाँ सेल आता है. विल नॉट का नॉट आ गया, विल नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट रवि, विल आ गया विल, और नॉट का प्रयोग है नॉट आ गया, प्ले मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्ले आ गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट में आ गया फिर रवि, और अब इसमें इज आर एम का प्रयोग आता है. ये यूज इज आर एम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो इज विल बी यूज्ड विद ही सी इट, ही इज, सी इज, इट इज रेनिंग. और आर का प्रयोग आएगा आई, वी, यू, दे आर, और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग आएगा. और एम का प्रयोग आएगा सिर्फ आई के साथ में, एम विल बी यूज्ड ओनली विद आई. सो रवि इज नॉट
मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले। फिर इसमें साथ हमको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में, मतलब 3, 4, 5 और 10, 11, 12 जो ये हैं, इनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। कंटिन्यूस में आईएनजी हमेशा आएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। रवि इज नॉट प्लेइंग, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिकेट, रवि क्रिकेट नहीं खेल रहा है। चलो अगला देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस रवि, और पास्ट में आ जाएगा वॉच वर्ब, तो इसमें आ जाएगा वॉच। ही सी इट नेम के साथ में आ जाएगा वॉच, और आई के साथ में आ जाएगा वॉच, आई वॉच। लेकिन दे, यू, वी के साथ आ जाएगा वर्ब। रवि वॉच नॉट, ये नॉट आ गया। फिर प्ले और आईएनजी जुड़ गया, प्लेइंग ऑब्जेक्ट आ गया, क्रिकेट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रवि, ये रवि आ गया सब्जेक्ट, फिर विल आ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है, और फिर ये नॉट है, नॉट का प्रयोग, बी आ गया, ये बी। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर प्लस आईएनजी क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया यहाँ। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई काम पूर्ण हो चुका है, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो मतलब परफेक्ट, परफेक्ट में ही अपना आप में वो वाक्य में नीत है, वो सब में नीत। परफेक्ट यानी परफेक्शन, परफेक्ट से बनता है परफेक्शन। एक कहावत इंग्लिश में, मैन इज परफेक्ट इन इम्परफेक्शन, क्या आदमी अपूर्ण काम में पूर्ण है, मतलब कि कोई आदमी पूर्ण नहीं है, गलतियां करना इंसान की फितरत है। तो अ इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये शब्द एक नया शब्द आप देखिए, ERR, अ यानी गलती करना, गलती करना, ये अ होगी। तो अ इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कि गलती करना मनुष्य की फितरत है और उसको क्षमा करना देवताओं का काम होता है। तो will not be playing cricket. Now present perfect tense, Ravi has में से है जाएगा, क्योंकि किसी नेम ही, सी, इट या नेम के साथ में है जाएगा, और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में है आएगा। रवि हैज नॉट, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। इज नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा इस प्रकार होता है कि भूतकाल के 2 वाक्यों को उसमें जोड़ा जाता है, कि बरसात रुकने से पहले ही मैं वहां पहुंच गया, और बरसात रुकने के बाद में मैं कहीं पहुंचा, मतलब पहले, बिफोर, आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आएगा। तो जहां बिफोर का प्रयोग आ रहा है तो समझ लीजिए बिफोर, BEFOR बिफोर है ना, तो उसके बिफोर का आपको ये सोचना है कि एक साइड में 2 वाक्य बनेंगे, एक साइड में तो पास्ट परफेक्ट टेंस और एक साइड में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिफोर का प्रयोग आते ही समझ लो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले, मतलब बिफोर, समझिए। और आफ्टर का प्रयोग आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में आएगा। जैसे आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन, इट स्टार्टेड रेनिंग, कि बरसात शुरू होने के पहले ही मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। बिफोर, बिफोर लगाया और बिफोर के पहले हैड का प्रयोग आ गया। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम, एंड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क आफ्टर माई मदर हैड कम। मेरे मम्मी के घर पे आज चुकने के बाद में मैंने गृह कार्य पूरा किया। तो आफ्टर का प्रयोग आया, तो आफ्टर का मतलब आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ। फिर देखिए, हाँ, रवि सब्जेक्ट, हेड, पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेड का प्रयोग किया आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड आएगी, भले कोई भी करता हो, सब्जेक्ट हो। हेड नॉट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले के साथ में प्लेड, क्रिकेट। रवि हैड नॉट प्लेड क्रिकेट व्हेन, जब मैं, आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया तब रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक तरफ तो जो है इसमें विल हैव का प्रयोग आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग आएगा, दूसरी तरफ में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग आएगा, और सिंपल जो है इनडेफिनिट का प्रयोग आएगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग आएगा। रवि विल हैव, रवि विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर आई गो देयर, कि मेरे वहां जाने के पहले ही रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। रवि विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर आई गो देयर। तो आप देखिए बिफोर का प्रयोग यहाँ आया, तो बिफोर का मतलब है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले और आफ्टर आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग बाद में। और एक साइड में आगे फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग आ गया, एक साइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आ गया। ये ध्यान रखिए, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इन दोनों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देयर इज अ स्लाइट चेंज इन दीज टू टेंसेज। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम चल रहा है, उसके बारे में कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। नॉट वी हैव नॉट बीन गिवन अ फिक्स टाइम, फिक्स शेड्यूल फ्रॉम व्हेन समथिंग स्टार्टेड। जैसे मैं खाना बना रहा हूं, तो अब मैं एक निश्चित समय नहीं दिया गया है कि मैं खाना कब से बना रहा हूं, लेकिन यूं कहूं कि मैं सुबह मैं जो 1 घंटे से खाना बना रहा हूं, तो वो जो कंटिन्यू जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, मतलब निश्चित वो समय उसमें समयबद्धता उसमें आ गई। तो कहने का मतलब ये है रवि हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि रवि सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। एक बात ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर में जो है सिंस और फॉर का प्रयोग उसमें आता है। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे सुबह से तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, जनवरी से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सोमवार से, और 2 बजे से, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इनके साथ में सिंस का प्रयोग आएगा। और फॉर 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 हफ्तों से, 2 घंटों से, तो वो हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसके साथ आएगा फॉर। तो सिंस मॉर्निंग आ गया यहाँ पर सिंस का प्रयोग। और रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि रवि सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो ये प्रेजेंट का पास्ट हो गया, हैड का प्रयोग हो गया, हैड नॉट बीन, हैड बीन। और हैज बीन हैव बीन का प्रयोग आप समझ गए, हैज हैव बीन। तो जिस प्रकार हैज हैव इस प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है हैज हैव, उसी प्रकार हैज हैव में जो है हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो सब्जेक्ट के साथ में हैज जुड़ेगा वही सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव में ये ऐसे भी जुड़ेगा। फिर देखिए रवि फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन है, रवि विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि रवि सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो इसमें एक और इसमें जोड़ सकते हैं, आगे वाक्य भी थोड़ा और इसमें बन सकता है आगे, रवि विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, जो बाय द टाइम यू मीट हिम, बाय द टाइम ऐसे भी अपन जोड़ सकते, बाय द टाइम यू मीट हिम। तो इस प्रकार ये जो टेंस है, टेंस जो है, अब हमने जो है नेगेटिव बनाने सीख लिए कि नेगेटिव इनका पॉजिटिव का नेगेटिव वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको जो है अच्छी तरह से ये समझना है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली वेयर which helping verb should be used in a tense and which form of a verb will be used in a tense. So before ending, let me tell you
one more aphoristic saying in English. When a person falls on evil days, his wits are clouded. के विपत्ति आने पर मति मारी जाती है. When a person falls on evil days, his wits are clouded. के जो है मति मारी जाती है. उसको जो है इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया, हिंदी में भी बता दिया, अब संस्कृत में उसको कैसे कहते हैं ये आपको मैं बता रहा हूं. सुनना. आप ये श्लोक है कि प्रतिकूलता ही मुपगति विफलत्वमेति बहुसाधनत्वात् अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्यति कर सहस्रमपि. मतलब कहते हैं कि जब सूर्य का अस्तांचल में जाता है, when the sun is about to set in the west, तो उस समय even the 1,000 rays of the sun cannot stop it from setting. कि सूर्य को हजारों किरणें भी अस्त होने से रोक नहीं पाती. कहने का मतलब यह है कि जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी मति मारी जाती है. इस प्रकार जो है हमने ये किया टेंस. एक और सुविचार मुझको याद आ रहा है कि our actions may not always bring us happiness, but there is no happiness without action. कि हमारे को जरूरी नहीं है कि हम जो भी कार्य करें उसमें हमको सफलता मिले, लेकिन बिना कार्य किए जो है खुशी मिलना नामुमकिन है. तो इस प्रकार जो है ये our actions may not always bring us happiness, कि हमारे हम जो भी कोई कार्य करें वो जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा उससे खुशी मिले प्राप्त हो, लेकिन अगर हम कार्य करेंगे ही नहीं तो फिर तो खुशी मिलना बिल्कुल ही असंभव है. तो मतलब कहने का ये हमको कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए. थैंक यू.